Hello, Bismillah Rahman Rahim. Today we will discuss the working capital management. Is it okay from my side, voice and everything, students? Hello, are you listening? Hello, hello, are you listening?
Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the working capital management. Is it okay? Okay, ji, many students now join. We are starting the class financial management, and this lecture is working capital management of financial management. So, what is the working capital management? You know, we have a five big components in a balance sheet: grant assets, fixed assets, grant liabilities, long-term liabilities, and owner equity. So this belongs to a grant assets. A component of the grant assets, again, I want to repeat it. Number one is the cash. Number two, inventory, marketable securities, account receivable, and prepaid expense. So these are the
you can say the current assets. Now, in this lecture, we are going to deal with the current assets only. So what is the current assets? Look at it, and we are starting today lecture. That is financial management. Financial management. Uh, Financial management. The pictures, I think, is not active. Hello. Okay. Financial management. So look at it, and we are now moving towards start our lecture. This is the chapter number 8, overview of the working capital management, and we are dealing with the working capital management. I have already started that working capital means current assets and current liability. So what is the net working capital? That is current assets minus current liability. Gross working capital, the total investment in the current assets. So you can say the total current assets is a gross working capital and net working capital when we subtract the current assets minus current liability. Working capital management, the administration of the firm's current assets and financing need to support the current assets. So that we are dealing in this lectures of working capital management. Let me start with an example. I want to touch with my students whether they are. Picture is not still active. Yes, it's okay now. Students, is it okay to everything on your side? Many students joined already. Let me start it कि working capital management क्या होता है और working capital management से हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम क्या हमारी मुराद क्या है। मैंने बताया ये करंट एसेट है, तो सपोज करते हैं कि हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के मैनेजर हैं और आप वर्किंग कैपिटल को डील कर रहे हैं, तो आपने 3 पॉलिसी बनाई है। एक पॉलिसी ए है, एक पॉलिसी बी है और एक पॉलिसी सी है। पॉलिसी ए में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ज़्यादा आपने रखा है। पॉलिसी बी में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है, तो करंट एसेट जो है वो कम है, पॉलिसी सी में और कम है। ये 3 लेवल हैं अमाउंट ऑफ वर्किंग। लेट्स सपोज कि 50,000 मैक्सिमम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है। हमारा कोई फर्म है जिसमें हमने कोई प्रोडक्शन करनी है और उसमें 50,000 यूनिट की प्रोडक्शन है और हमारा कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस है कि हम जो है उसमें ब्रेक नहीं करते। 3 डिफरेंट पॉलिसीज हैं फॉर करंट एसेट्स लेवल। अब हम कितने करंट एसेट रखें? अगर हम पॉलिसी ए के मुताबिक करंट एसेट रखते हैं तो ज्यादा करंट एसेट्स हैं, पॉलिसी बी में इंटरमीडिएट पोजीशन है और सी में कम करंट एसेट्स है। आइए हम देखते हैं कि हमें इन पॉलिसीज का इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या होता है। चूंकि करंट एसेट जो है वो लिक्विडिटी को मेजर करते हैं, लिहाजा पॉलिसी ए में लिक्विडिटी ज्यादा है, हाई लिक्विडिटी है, पॉलिसी बी में एवरेज लिक्विडिटी है और सी में लो लिक्विडिटी है। तो जितने करंट एसेट ज्यादा होंगे उतनी लिक्विडिटी आपकी ज्यादा होगी और जितने करंट एसेट कम होंगे उतनी ही लिक्विडिटी आपकी कम होगी। लिक्विडिटी असल में क्या है? लिक्विडिटी फैसिलिटेशन है। किसकी फैसिलिटेशन है? ये फैसिलिटेशन है ट्रांजैक्शन की। जितना कोई ट्रांजैक्शन अच्छी तरह से कर सकता है और जितना कोई फैसिलिटेट हो सकता है
तो हम कह सकते हैं कि ये उसकी फैसिलिटेशन है, यानी ट्रांजैक्शन जो है वो अगर लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो आसानी से हम कर सकेंगे, अगर लिक्विडिटी कम होगी तो ट्रांजैक्शन जो है वो हर्डल क्रिएट कर सकती है, उसमें उसका प्रोसेस स्लो हो सकता है। तो ग्रेटर द करंट एसेट लेवल जनरेट मोर लिक्विडिटी, ऑल अदर फैक्टर हेल्ड कांस्टेंट। जितने करंट एसेट ज्यादा होंगे उतनी लिक्विडिटी ज्यादा होगी। अब अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट से। तो जब हमारा ए लेवल होगा तो टोटल एसेट ज्यादा होंगे, बी में इंटरमीडिएट होंगे, सी में कम होंगे, क्योंकि टोटल एसेट होते हैं फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। तो फिक्स एसेट और करंट एसेट्स दोनों मिलके टोटल एसेट बनते हैं। ए पॉलिसी चूंकि करंट एसेट ज्यादा है तो टोटल एसेट भी ज्यादा होंगे। बी में करंट एसेट जो है वो इंटरमीडिएट पोजीशन पे हैं, मॉडरेट हैं, तो एवरेज हैं, तो बी में टोटल एसेट भी एवरेज होंगे। सी में कम है तो सी में मिनिमम टोटल एसेट होंगे। टोटल एसेट जब कम होंगे तो प्रॉफिट कांस्टेंट है, फिक्स एसेट भी कांस्टेंट है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ए पॉलिसी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगी, बी में इंटरमीडिएट होगी और सी में ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉलिसी ए में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बी में कम है और सी में ए में कम है, बी में इंटरमीडिएट है और सी में ज्यादा है। अच्छा, तो अब ये करंट एसेट जो है इसके 3 बड़े पोर्शन होते हैं। इसके वैसे 5 पोर्शन होते हैं। पहला होता है कैश, दूसरा होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी, तीसरा होता है इन्वेंट्री, चौथा रिसीवेबल और पांचवा प्रीपेड। प्रीपेड पोर्शन वैसे ही कम होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी और कैश जो है वो एक ही चीज है, एक ही चीज उन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो करंट एसेट ज्यादा का मतलब है या तो कैश बढ़ाया है आपने, या रिसीवेबल आपके बढ़े हैं, या इन्वेंट्री आपकी बढ़ी है। तो ऐसी सूरत में क्या इम्पैक्ट होंगे, इसको हम पढ़ने चले जा रहे हैं। कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। फिक्स एसेट सेम है, नेट प्रॉफिट सेम है। करंट एसेट जब ज्यादा होगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगी, करंट एसेट जब कम होगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। यहाँ तक हमने देख लिया है। मैं देखता हूँ लेट मी कि कोई क्वेश्चन अगर कोई किसी स्टूडेंट ने किया है, पहले हम उसको देख लें। जी, इम्पैक्ट ऑन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा ठीक कह रहे हैं। ये एक्चुअली इसे हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रिटर्न कितना है। तो रिटर्न को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि करंट एसेट और फिक्स एसेट में अगर करंट एसेट ज्यादा है तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। हम सपोज करते हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस है। हम सपोज करते हैं कि ए जो है, अब ए में पॉलिसी ए में प्रॉफिटेबिलिटी लो है, क्यों? इसमें करंट एसेट ज्यादा है। बी में एवरेज है और सी में हाई है, क्योंकि करंट एसेट कम है। करंट एसेट कम होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी और करंट एसेट ज्यादा होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। एज करंट एसेट लेवल डिक्लाइन, टोटल एसेट विल डिक्लाइन एंड ROI विल राइज। करंट एसेट डिक्लाइन होंगे तो ROI राइज है, और अगर ये इंक्लाइन होंगे तो फिर ROI जो है वो फॉल कर जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल है करंट एसेट का और प्रॉफिटेबिलिटी का रिलेशनशिप। हम सपोज करते हैं कि हमने कैश को डिक्रीज कर दिया। अगर हम कैश कम करते हैं
तो फिर क्या होगा, हमारे ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा, रिड्यूस द फर्म एबिलिटी टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। बिजली का बिल ज्यादा आ गया, कैश नहीं था, पे नहीं कर सकते। एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ गई, कैश नहीं था, हम पे नहीं कर सके। किसी कोई पेमेंट करनी थी, कैश नहीं है, तो यकीनी तौर पर क्या होगा, पेमेंट हम नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कैश को कम करेंगे करंट एसेट में तो रिस्क आपका बढ़ जाएगा। हम सपोज करते हैं कि हम अकाउंट रिसीवेबल को कम करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल को कम करने का क्या तरीका है कि हमने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। पहले हम 2 महीने के उधार पे अपनी सेल करते थे, अब हमने 1 महीने के उधार पे सेल कर दिया। जब हमने अपनी क्रेडिट पॉलिसी को स्ट्रिक्ट किया है तो ऐसे में हमारे रिसीवेबल कम हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ हमारे कस्टमर जो हैं वो रूठ जाएं, वो कहते हैं नहीं जी अब तो हम पे नहीं कर सकते 1 महीने में, तो लिहाजा हम तो 2 महीने में ही पे कर सकते हैं, तो लिहाजा हम किसी और से परचेज कर लेते हैं। तो खतरा ये है कि हमारे कुछ कस्टमर जो है यानी सेल हमारी कुछ कम हो जाएगी, तो ये भी एक रिस्क बढ़ जाएगा। सपोज करते हैं कि हमने इन्वेंट्री का लेवल लो कर दिया। इन्वेंट्री का लेवल लो का मतलब है हमारा स्टॉक आउट हो जाएगा, इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी। पहले हम किसी मार्ट के ऊपर लेट सपोज 100 यूनिट रखते थे, अब हमने 50 यूनिट रख दिए हैं। तो कहीं कोई एक ऐसा कस्टमर आया जिसने कहा हमें 55 यूनिट चाहिए, तो अब 5 यूनिट ना होने की वजह से उसने कहा जी मैं फिर किसी और से खरीद लेता हूँ क्योंकि मुझे तो 55 ही चाहिए, हमारे पास 50 पड़े हुए। तो ऐसी सूरत में भी हमारी सेल जो है वो मुतासर हो सकती है। तो इन तीनों सूरतों में हम कह सकते हैं कि जैसे ही करंट एसेट्स आपका कम होगा, रिस्क आपका हाई हो जाएगा। कैश कम करने से भी हाई होगा, रिसीवेबल कम करने से भी हाई होगा, और इन्वेंट्री को कम करने से भी हाई होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पॉलिसी ए में रिस्क लो है। ये देखिए पॉलिसी ए में करंट एसेट ज्यादा है तो रिस्क आपका लो हो गया, बी में एवरेज है और सी में हाई है। रिस्क इंक्रीज एज द लेवल ऑफ करंट एसेट्स आर रिड्यूस। जैसे ही करंट एसेट का लेवल रिड्यूस होता है और रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो अब हम इन सारे का अगर एनालिसिस करें तो पॉलिसी ए में आप देखते हैं कि लिक्विडिटी हाई है, करंट एसेट ज्यादा है, लिक्विडिटी हाई। बी में करंट एसेट ज्यादा है, आरओआई कम है यानी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, और रिस्क भी कम है। बी में ये तीनों एवरेज हैं, सी में उसके उलट है, यानी सी में लिक्विडिटी लो है क्योंकि करंट एसेट लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है क्योंकि करंट एसेट लो है, इनवर्स रिलेशनशिप है, और रिस्क भी हाई है क्योंकि करंट एसेट लो है। यहां से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी वेरीज इनवर्सली विद लिक्विडिटी। प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी का अगर हम रिलेशनशिप देखें तो यहाँ हाई है तो इधर नीचे हाई है, यहाँ लो है तो इधर ऊपर लो है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क को देखते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखें ये भी लो है, ये भी लो है, एवरेज एवरेज हाई हाई। इसका मतलब है कि ये टूगेदर यानी कि इनका एक जैसा रिलेशनशिप है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, एक कम होती है तो दूसरी भी। तो प्रॉफिटेबिलिटी हम कह सकते हैं मूव टूगेदर विद रिस्क, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। ये यहां तक हमने ये पढ़ लिया। मैं देखता हूं कि शायद कोई क्वेश्चन आ गया हो तो हम वो ले लें पहले। प्रेफर ए पॉलिसी इज बेटर, कौन सी पॉलिसी बेहतर है? प्रेफर ए पॉलिसी इज बेटर, ए पॉलिसी लेनी चाहिए, बी लेनी चाहिए, सी लेनी चाहिए, या कौन सी लेनी चाहिए? डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डील करना चाहते हैं। ये सिर्फ ये बताया गया है, अभी ये हमने डिसीजन नहीं किया कि कौन सी पॉलिसी लेनी है। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप ए पॉलिसी लेंगे जिसमें करंट एसेट ज्यादा हैं तो उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी।
और अगर आप सी पॉलिसी लेते हैं जिसमें करंट एसेट कम है तो उसमें लिक्विडिटी भी कम होगी और लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उसमें ज्यादा होगी। तो ये एक रिलेशनशिप हमने डेवलप कर लिया। तो ये रिलेशनशिप के बारे में अभी हमने ये करना है कि ये कौन सा हमने अब हम ये कह रहे हैं कि कौन सी पॉलिसी हम लेंगे, यानी ए लेंगे, बी लेंगे या सी लेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये है कि अगर ए लेंगे तो लिक्विडिटी बेहतर होगी और रिस्क जो है वो कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी। और अगर हम सी पॉलिसी लें तो लिक्विडिटी कम होगी, आपका जो रिस्क है वो भी रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो उसमें ज्यादा होगी, रिस्क भी ज्यादा होगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होगी। फिर हमने ये रिलेशनशिप डेवलप कर लिया कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये इनवर्स रिलेशन रखती है और लिक्विड और फिर प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क जो है ये सेम रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन रखता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं लिक्विडिटी और रिस्क जो है ये भी इनवर्स रिलेशन रखता है। प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क जो है इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब ये क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि स्टूडेंट से कि आप कौन सी पॉलिसी प्रेफर करेंगे और क्यों करेंगे। अभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट इसका क्या रिप्लाई करते हैं। एवरेज अरफा सलीम कह रही हैं कि एवरेज। आमना बुशरा भी कह रही हैं कि बी इज बेटर। और एनीवन प्लीज। बाकी सारे अपना अपना कमेंट दें कि आपके सामने 3 पॉलिसीज हैं तो कौन सी पॉलिसी आप प्रेफर करेंगे। ए वाली पॉलिसी प्रेफर करेंगे, बी वाली करेंगे, सी वाली करेंगे। किंजा ने अभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ ओके कहा है। आप इस पर राय दें कि कौन सी पॉलिसी। बी इज गुड। जकी आई थिंक बी। अली अबरार ने भी बी कहा है और जवेरिया भी कह रही हैं कि बी। महानूर बी। मरियम ने कोई कुछ नहीं कहा। उस्मान अरशद कह रहे हैं बी। मोस्टली स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि बी। सर इट्स डिपेंड अपॉन द बिजनेस नेचर। बिल्कुल ठीक बात है, बिजनेस नेचर पे डिपेंड करेगा कि बिजनेस नेचर किस तरह की है और फिर हम डिसाइड करेंगे। बी इज गुड, बी इज गुड। अच्छा, वजह क्या है बी के गुड होने की। यही लग रहा है कि एवरेज है तो ना रिस्क ज्यादा है ना प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। मोस्टली स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि बी पॉलिसी जो है वो गुड है तो बी पॉलिसी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। एक तो बिजनेस की नेचर कौन सी है और फिर ये है कि आपने आपकी मैनेजमेंट जो है ना वो क्या है। अगर तो आप अग्रेसिव मैनेजमेंट रखते हैं तो यकीनी तौर पर आप सी पॉलिसी लेंगे और अगर आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, आपका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट स्टाइल है तो फिर आप जो है क्या करेंगे, फिर आप ए पॉलिसी लेंगे। डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है। और अगर आप दोनों के दरमियान जाना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि बी पॉलिसी बेटर है, तो आप बी भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है, बस सिर्फ बताना ये है कि अगर ए पॉलिसी है तो रिस्क भी कम है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। बी पॉलिसी में एवरेज है और सी पॉलिसी में रिस्क भी ज्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है। अब आप कौन सी पॉलिसी लेते हैं डिपेंड करता है। अग्रेसिव मैनेजमेंट पे है तो आप सी पॉलिसी लेंगे और अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, कन्वेंशनल मैनेजमेंट है तो आप नॉर्मली ए पॉलिसी लेते हैं। और अगर आप इन दोनों के दरमियान रहना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। बिजनेस नेचर पे भी डिपेंड करता है
इसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, आपका अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, पहले रिस्क कंपनी का कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है। इस पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी की जो है ना वो पोजीशन क्या है मार्केट में, कंपनी लीड कर रही है या कंपनी फॉलोअर में से है। तो ये सारी चीजें मिला के हम कह सकते हैं कि हम फिर कोई डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मोड लेना है, वेदर ए लेनी है पॉलिसी, बी लेनी है या सी लेनी है। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि पूरा सिनेरियो हमारे सामने ना हो। मैं देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन और आया है तो हम उसको रिप्लाई कर दें और फिर देखें। ये मोस्टली स्टूडेंट कह रहे हैं नो बी, यस यस नहीं। इट डिपेंड्स, it depends, number one, on business nature, number two, your market position, number three, your own already capital structure, और रिस्क कितना है, आप कैपिटल स्ट्रक्चर में रिस्क ऑलरेडी कितना ले रहे हैं और कितना रिस्क में इजाफा हो जाएगा। ये सारी चीजें इसमें हम काउंट करेंगे। मार्केट की पोजीशन क्या है, रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आप तक एक सवाल छोड़ता हूं, अच्छा रिस्क जो है वो क्या है, लाइबिलिटी है, ओनर इक्विटी है, एसेट है, क्या है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, ओनर इक्विटी। अब मैं वेट करूंगा कि स्टूडेंट कोई जवाब दे। व्हाट इज द रिस्क, इज इट एन एसेट, इज इट अ लाइबिलिटी, व्हाट इट इज? तो रिप्लाई कीजिएगा और जवाब लिखिएगा कमेंट में कि रिस्क असल में क्या है, और फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। मैं वेट करूंगा आपका, मैं इस पे रिप्लाई करूंगा दोबारा, इसको हम देखेंगे। अभी तक आप ये सोचिए कि व्हाट इज अ रिस्क, इज इट एसेट, इज इट लायबिलिटी? Put your question in the comment and we will discuss. आगे बढ़ते हैं जी। When we look at the component of a working capital, तो वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट हैं कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, रिसीवेबल और इन्वेंट्री। और अगर हम फिर गौर करें तो हम पूरे साल का वर्किंग कैपिटल देखें तो कुछ वर्किंग कैपिटल परमानेंट है और कुछ टेम्पोरेरी है। मैं मिसाल देता हूं, अगर आपकी एक शुगर मिल है तो आप देखते हैं कि जब शुगर मिल का सीजन होता है तो उसका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है, आपको ज्यादा कैश चाहिए, रिसीवेबल भी बढ़ जाते हैं, इन्वेंट्री भी बढ़ जाती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज और कैश को करीब करीब हैं तो इसको हम एक कंसीडर करेंगे। तो इन्वेंट्री के बढ़ने से, रिसीवेबल के बढ़ने से, कैश के बढ़ने से कुछ सीजनल आपका वर्किंग कैपिटल जिसे टेम्पोरेरी कहते हैं वो बढ़ जाता है। तो मैं अगर यूं देखूं तो लेट सपोज करता हूं कि अगर मैं एक मिल का, शुगर मिल की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि शुगर मिल का जो है वर्किंग कैपिटल वो 50 मिलियन है थारोली पूरा साल। लेकिन जब सीजन होता है तो 50 मिलियन और बढ़ जाता है। यानी तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है वो 50 मिलियन है और टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल भी 50, चले 30 मिलियन है, 80 हो जाता है तो 30 मिलियन है। यानी कि टोटल करंट एसेट एक फर्म के जो है एक फर्म के टोटल करंट एसेट जो है वो 80 मिलियन है। हमेशा पूरा साल जो रहते हैं वो 50 मिलियन है और 30 मिलियन ऐसे हैं जो कि जब सीजन हो तो होते हैं, जब सीजन ना हो तो नहीं होते। इस तरह से वर्किंग कैपिटल की लाइन।
तो वर्किंग कैपिटल की लाइन आपके सामने है, ये इस तरह से है कि ये ये जा रही है और ये बढ़ रहे हैं, ये इस तरह से। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट रिक्वायर्ड टू मीट फर्म लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड। करंट एसेट्स की दो पोर्शन है, एक टेम्पोरेरी पोर्शन है और एक परमानेंट पोर्शन है। अब परमानेंट पोर्शन ये है करंट एसेट का, क्योंकि विद इन्फ्लेशन बढ़ती है और कारोबार में भी वुसअत होती है, ग्रोथ होती है, तो ये करंट एसेट टाइम के एतबार से बढ़ते हैं। ये लाइन स्ट्रेट नहीं होती बल्कि बढ़ते जाते हैं। मैं यूं कहता हूं कि 2020 के करंट एसेट से 2021 के ज्यादा होंगे, 22, 23, 24, 25 ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ये करंट एसेट हैं जो टेम्पोरेरी करंट एसेट, ये टेम्पोरेरी पोर्शन है करंट एसेट का और ये भी टेम्पोरेरी पोर्शन है करंट एसेट का। तो करंट एसेट के दो पोर्शन हुए, एक परमानेंट करंट एसेट और एक टेम्पोरेरी करंट एसेट। ये टेम्पोरेरी करंट एसेट कब चाहिए? जब सीजन होता है तो ये चाहिए, जब सीजन नहीं होता तो ये नहीं चाहिए। तो जब ही सीजन होगा तो इसकी अमाउंट हमें चाहिए होगी। अब इसमें भी देखें कि जिस तरह से यहाँ पर परमानेंट करंट एसेट कम है, तो यहाँ इसके लिए ये छोटा सेमी सर्कल है और ये थोड़ा बड़ा सेमी सर्कल है और ये फिर उससे बड़ा, यानी कि पहले साल से दूसरे साल और तीसरे साल के जो टेम्पोरेरी करंट एसेट्स हैं वो भी बढ़ते हैं, परमानेंट करंट एसेट्स भी वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन मैं देखना चाह रहा हूँ, कोई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है तो हम उसको देख लेते हैं। बाद ने ये हेल्प ली है और इसने बताया है कि रिस्क नीदर लायबिलिटी नॉर एसेट, रिस्क इज अनसर्टेनिटी ऑफ द फाइनेंशियल लॉस। बिल्कुल ठीक कहा है इसने, तो अल्लाह खैर करे, इसने बिल्कुल ठीक बता दिया है। आज हमारे बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो उसने ये कहा है कि रिस्क ना लायबिलिटी है और ना ही ये रिस्क जो है, आंसर आ गया जी, यकीनी तौर पर रिस्क ना लायबिलिटी है ना एसेट है, ये अनसर्टेनिटी है। और अनसर्टेनिटी का भी वो पोर्शन जो लॉस से कनेक्टेड है। ये अनसर्टेनिटी के भी दो पोर्शन है, एक अनसर्टेनिटी होती है जिसे आप पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्क करते हैं या अप साइड ऑफ रिस्क कहते हैं, इसका कोई खतरा नहीं है, एक्चुअली ये रिस्क नहीं है। और डाउन साइड जो अनसर्टेनिटी है, मसलन आप अगर एक शेयर खरीदते हैं तो शेयर, ये भी अनसर्टेनिटी है कि इसकी कीमत बढ़ जाए, लेकिन ये रिस्क नहीं है। उसकी कीमत कम हो जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाए, जब उसकी वैल्यू कम हो जाए तो एक्चुअली ये डाउन साइड रिस्क है, असल में रिस्क ये है। तो रिस्क ना लायबिलिटी है ना एसेट है, ये अनसर्टेनिटी है। और वो अनसर्टेनिटी का पोर्शन जो लॉस से जुड़ा हुआ है उसको हम रिस्क बोलते हैं। अब बिल्कुल ठीक कहा हमवाद ने, और हमने भी ये बात मान ली कि बड़ी जबरदस्त बात हमें बताई है। और अब हम देखते हैं कि कोई और क्वेश्चन अगर हमारे पास हो तो हम उसको भी देख लें। वाओ, यस सर, वाओ किस बात पे? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आप का टाइम है कि आप क्वेश्चन पूछ लें। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, दिस इज योर टाइम स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग। कंजर्वेटिव पॉलिसी मीन्स क्या है? समर अब्बास हमारे बड़े ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, हमेशा से बड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं। कंजर्वेटिव पॉलिसी है, अग्रेसिव पॉलिसी है। अग्रेसिव पॉलिसी का मतलब है आप उसमें अग्रेसिव एक्शन करते हैं। कंजर्वेटिव पॉलिसी में यह है कि आप रिस्क कम लेते हैं। पुराने ज़माने में कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल आप कह लें, पुराने ज़माने में ये अप्रोच होती थी कि कम से कम रिस्क लिया जाए, तो उसका नाम पड़ गया कंजर्वेटिव पॉलिसी। कंजर्वेटिव पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसमें रिस्क कम होता है और अग्रेसिव पॉलिसी में रिस्क ज़्यादा लिया जाता है। जी,
कोई और क्वेश्चन बेटा अगर है तो? उन्नीस लोग अभी तक हैं जो यहाँ पे लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज के ईद की छुट्टियों से पहले भी अपनी कुर्बानी दी है पढ़ने की। और तो ये भी एक कुर्बानी है, ईद पर भी यकीनन कुर्बानी होती है। और तो ये भी कुर्बानी है कि बंदा पूरी मेहनत करे और पूरी मेहनत से चीज़ों को सीखे। अपने टाइम को आपने सही यूज़ किया है। अ, यकीनन आपको मुश्किल लग रहा होगा कि आज सर ने क्लास रख ली, क्लास चूँकि थी तो मैंने कहा चलो इसको ज़रूर हम करेंगे। हम ईद से पहले वाली कुर्बानी अपनी कुर्बानी करेंगे और फिर हम ईद पे भी कुर्बानी करेंगे। सर पे बैक पीरियड डिफरेंस बिटवीन आरओआई एक्सप्लेन। पे बैक पीरियड तो बेटा और चीज़ है, आरओआई और चीज़ है। पे बैक पीरियड तो मैंने बताया था वो पीरियड है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो वापिस कब आएगी, कितनी देर में आएगी। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसका वो कितने वो क्या रिटर्न कर रही है, उसका रिटर्न क्या है। इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है तो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ये आपने लगाया हुआ खुद, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपकी है और ऑनर इक्विटी आपकी है। तो ऑनर इक्विटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या कमा रहे हैं, तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आई होप। जी, और कोई क्वेश्चन है बेटा तो जरूर पूछिए। I'm waiting. Anyone who want to put a question, payback period, something other than that of a return on investment. Payback period capital budgeting technique है और return on investment जो है वो profitability measure है कि आप कमा क्या रहे हैं। चलें जी, समर अब्बास ने हमें कह दिया कि ओके हमें समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं इंतहाई जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ, आप जरा गौर से सुनिएगा और पूरी तवज्जो आप रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। आइए जी, हम आगे चलते हैं। ले, ये है स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। दो तरह की फाइनेंसिंग होती है, एक होती है स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग का मतलब है जो ऑटोमेटिक फाइनेंसिंग हो रही है। पहले नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग का मैं आपको बताता हूँ। आप किसी बैंक जाते हैं, वहां से लोन लेते हैं, तो वो जो फाइनेंसिंग है जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है। या आपने इक्विटी शेयर बेच दिए तो वो फाइनेंसिंग नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है। वो फाइनेंसिंग जिसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं है, आपने सिर्फ बिजनेस ऑपरेट किया और खुद ब खुद लायबिलिटी जनरेट होगी, ऐसी फाइनेंसिंग को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। इसमें ट्रेड क्रेडिट है, इसमें पेएबल्स और अक्रूवल्स हैं दैट राइज स्पॉन्टेनियसली इन द फर्म्स डे टू डे ऑपरेशन। आपका जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, बिजली का बिल आता जाएगा, गैस का बिल आता जाएगा, पानी का बिल आता जाएगा, जो लोग रखे होंगे सैलरीज उनकी आती जाएगी, और इस तरह से आपने खुद कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑपरेशन को मेंटेन रखा और स्पॉन्टेनियसली फाइनेंसिंग हो गई। ऐसी फाइनेंसिंग को हम स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग कहते हैं। कुछ फाइनेंसिंग ऐसी हैं जिसमें आप एप्लीकेशन देते हैं, किसी बैंक के पास जाते हैं, वहां से लोन लेते हैं, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है। या फिर आप इक्विटी को सेल करने का कोई ऐलान करते हैं और अपने शेयर बेच देते हैं, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है। तो फाइनेंसिंग दो तरह से हुई, कुछ जो ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और जो हमारी मर्जी से जनरेट हो रही है उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग करते हैं। बेस्ड ऑन द पॉलिसी रिगार्डेड पेमेंट फॉर परचेज, लेबर, टैक्स एंड अदर एक्सपेंसेस
We are concerned with managing non-spontaneous financing of the asset. हमारी मुराद जब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है तो हम स्पॉन्टेनियस में कुछ नहीं कर सकते। बिजली का बिल आएगा तो पे करना ही पड़ेगा, गैस का बिल आएगा तो पे करना ही पड़ेगा, आपको टैक्स आएगा तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इसी तरह से कुछ खर्चे ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं, वो आपने पे करने ही करने हैं। हमारी मुराद उन खर्चों की तरफ नहीं है, बल्कि हमारी स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है, यानी लायबिलिटी लेनी है या नहीं लेनी, और कितने सालों की लेनी है, और इक्विटी बेचनी है या नहीं बेचनी, और किस कीमत पर बेचनी है। तो ये स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है। और हमारी मुराद ये है, चूंकि स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग में हम जो है वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग में हम कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारी मुराद यहाँ पे फाइनेंसिंग ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है। मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मेरी बात उन तक पहुंची है या नहीं। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव प्लीज। कोई भी क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे नहीं है। जी जी, ये हमारे जकी साहब कह रहे हैं, कैन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग रिड्यूस द नीड फॉर बैंक लोन। नहीं बेटा, अभी हमने जो बात आपसे जो मैंने शेयर की है वो ये बात नहीं है। मेरा बात के शेयर करने का जो मकसद है वो ये है कि जो आपकी फाइनेंसिंग है वो दो तरह की होती है। एक होती है स्पॉन्टेनियस, जो ऑटोमेटिक हो रही है। जैसे मैंने बताया, बिजली का बिल आता जाएगा, लायबिलिटी जनरेट होती जाएगी, गैस का बिल आता जाएगा, लायबिलिटी जनरेट होती जाएगी, टैक्सेस आते जाएंगे, लायबिलिटी जनरेट होती जाएगी। इसके अलावा और बहुत से एक्सपेंसेस हैं जो जैसे ही ऑपरेशन का टाइम गुजरता जाएगा वो खुद ब खुद जनरेट होते जाएंगे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा हम उससे डील भी नहीं कर रहे। हम जब शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट की बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, तो हम नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग की बात करते हैं। यानी अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग क्या हुई कि हमने किसी से लोन लेना है या नहीं लेना, ये फैसला, लोन लेना है या बॉन्ड इशू करने हैं, ये फैसला, बॉन्ड इशू करने हैं या शेयर इशू करने हैं, ये फैसला, हम इसको डील करेंगे। अभी तक मैंने यही बताया है। तो इसके बारे में अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो मैं फिर बता देता हूँ। अच्छा जी, ईद मुबारक। ये ईद मुबारक हम बाद में कर लेंगे, मेरा ख्याल है अभी कोशिश करें हम कि पढ़ लें, अभी बड़ा टाइम पड़ा है। जी, student, if you have any question, now put up your question, please.
हाउ आर यू कंसीडर ट्रेड क्रेडिट एज ए स्पॉन्टेनियस फाइनेंस? एक और क्वेश्चन हमारे एक अच्छे स्टूडेंट ने और हमेशा से एक्टिव रहते हैं क्लास में, उन्होंने पूछा है और वो कह रहे हैं ट्रेड क्रेडिट जो है वो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग कैसे हो गई? ट्रेड क्रेडिट तो क्रेडिट पॉलिसी बन गई। 1 महीने के उधार पे देना है, 2 महीने के उधार पे देना है, 3 महीने के उधार पे देना है, ये एक पॉलिसी बन गई। अब ये जो पॉलिसी बन गई, इसके नतीजे में क्रेडिट जो है वो जनरेट होता चला जाएगा, करंट एसेट अब बढ़ता कम होता चला जाएगा। इसके नतीजे में लायबिलिटी बढ़ती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है। ट्रेड क्रेडिट इज अ स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, यानी कि एक दफा पॉलिसी बन गई, उसके बाद तो हमने इसको फॉलो करना है। अच्छा, अब हमने ये तो हमारी पॉलिसी थी कि हम बेचेंगे कैसे, हम खरीदेंगे कैसे। ये भी हमने पॉलिसी बनाई हुई है कि हमने उधार पे खरीदना है या हमने कैश पे खरीदना है, 1 महीने पे खरीदना, 2 महीने पे या 4 महीने पे, तो कितने टाइम के लिए हमारी खरीदारी कैसे होगी, उधार पे होगी या नहीं होगी, तो लायबिलिटी उसी एतबार से जनरेट होती चली जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रेड क्रेडिट जो है वो भी हमारा स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। हाल पूछा है एक स्टूडेंट ने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह के फजल से ये छुट्टियों से एक दिन पहले क्लास पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अपने ड्यूटी कर रहा हूँ तो बिल्कुल ठीक हूँ और कोई इशू नहीं। जी, कोई और क्वेश्चन बेटा? आई एम वेटिंग कि आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आए, ताकि स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग में कंपनी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और बैंक लोन यूज करती है क्या सर? नहीं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है ना। क्या आपने बॉन्ड इशू करने हैं, आपने डिबेंचर्स देने हैं, आपने बैंक लोन लेना है, क्या करना है, ये स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है। नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग ये नहीं है। ये जितनी भी खास तौर पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, ये स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी है। और जो जो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है वो शॉर्ट टर्म आमतौर पर होते हैं। अच्छा जी, अब्दुल्ला नासिर ने पहले तो ईद मुबारक कहा, अब उसने कहा कि बकरे महंगे हो गए, तो गाय में हिस्सा डालें ना, ना बकरा करें। अगर आपको लगता है कि बकरे महंगे हैं तो फिर आप वो वाला काम कर लें जिससे आपको लगता है कि इजीली हो सकता है। ओके जी, हम आगे बढ़ते हैं। पानी की जरूरत होगी मुझे। हम आगे बढ़ते हैं जी और हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ज्यादा ठंडा ना हो। अच्छा जी, अब हम अगर गौर करें तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। अब हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट अप्रोच पढ़नी है और इसको हम कहते हैं हैजिंग, मेजॉरिटी मैचिंग अप्रोच। ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, पूरे गौर से आपने इसकी तरफ देखना है। ये देखिए, ये फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जिनकी मेच्योरिटी साल से ज्यादा है। ये करंट एसेट्स हैं और ये करंट एसेट्स का टेम्पोरेरी पोर्शन। अब आप समझ गए, ये फिक्स एसेट है, ये पूरा साल चाहिए, ये करंट एसेट का पोर्शन भी पूरा साल चाहिए, ये सीजनल पोर्शन ऑफ करंट एसेट, ये तब चाहिए जब सीजन है, जब सीजन खत्म हो गया यहाँ जाके तो ये नहीं चाहिए, और ये तब चाहिए। अब मैं अगर एक शुगर मिल की बात करूं तो शुगर मिल के जो फिक्स एसेट हैं पूरा साल चाहिए,
शुगर मिल का जो परमानेंट पोर्शन ऑफ करंट एसेट है वो भी पूरा साल चाहिए। शुगर मिल का शॉर्ट टर्म जो करंट एसेट है सीजनल पोर्शन वो तब चाहिए जब सीजन हो, जब सीजन ना हो तो तब नहीं चाहिए। ये बात मेरा ख्याल आप समझ गए। लिहाजा फिक्स एसेट और परमानेंट पोर्शन ऑफ करंट एसेट पूरा साल चाहिए। यहां से लेकर यहां तक ये एसेट आपको पूरा साल चाहिए। ये एसेट आपको जो इस ऊपर वाली लाइन के ऊपर है ये सीजनल आपको चाहिए। हैजिंग अप्रोच यहां से समझ नहीं आए कि ये इसका ग्राफ अगर वो आ जाए, हाँ पहले उसको हम देखते हैं। ये यहां से इसको समझ आ जाएगा। स्टूडेंट बी रेडी। बड़ी इंपॉर्टेंट ये अप्रोच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आ, इसकी बेस पे बड़े डिसीजन होते हैं। तो अब हमने क्या किया, करंट एसेट आप जो टोटल एसेट हैं उसके दो पोर्शन बना दिए, लॉन्ग टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट को हमने कह दिया सीजनल है और लॉन्ग टर्म एसेट्स को हमने कह दिया ये वो है जो करंट एसेट का परमानेंट पोर्शन है और फिक्स एसेट्स का सारा फिक्स एसेट्स है। मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन अगर जनरेट हुआ है। अच्छा अच्छा बेटा, अब अगर आप गौर करें तो आ, 1 मिनट के लिए आप टोटल एसेट के दो पोर्शन हमने कर दिए। एक था परमानेंट पोर्शन यानी फिक्स एसेट प्लस परमानेंट पोर्शन ऑफ करंट एसेट। इसको हमने कह दिया कि ये लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, ये परमानेंट पोर्शन ऑफ टोटल एसेट है। सिर्फ जो करंट एसेट का सीजनल पोर्शन है वो टेम्पोरेरी है, जब सीजन आएगा तो वो लेंगे, जब नहीं आएगा तो वो नहीं लेंगे। आपने गौर से ये मेरी बात सुनी। अब टोटल एसेट के दो पोर्शन बन गए, एक परमानेंट एक टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी में सिर्फ सीजनल, परमानेंट में परमानेंट यानी परमानेंट में लॉन्ग टर्म एसेट प्लस परमानेंट पोर्शन ऑफ करंट एसेट। ये मैं अगर दिखा पाऊं तो ये देखें, ये यहां से लेकर यहां तक जो एसेट आपको चाहिए ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है और ये ऊपर वाला जो है ये आपका टेम्पोरेरी पोर्शन है। सीजन के वक्त चाहिए, सीजन नहीं है तो नहीं चाहिए। ये सारे का सारा जो है ये सीजन हो या सीजन ना हो ये आपको चाहिए। अब आपने देखा तो टोटल एसेट के दो पोर्शन हो गए। एक ये वाला पोर्शन जो इस साइकिल से नीचे नीचे है, इसमें करंट एसेट का पोर्शन भी शामिल है, फिक्स एसेट सारा शामिल है। ये कब चाहिए, ये तब चाहिए, ये सीजन हो या सीजन ना हो इसका इससे ताल्लुक नहीं है, ये पूरा साल चाहिए, ये वाला सीजन पे चाहिए। ये बात अगर आप क्लियर होगी है तो अब मेरे लिए सहूलत होगी कि मैं आगे आपको डिटेल से बड़ी आसानी से बता पाऊंगा। आई विल चेक कि ये बात स्टूडेंट तक पहुंची है या नहीं पहुंची। पिक्चर इज नॉट मूविंग, तो वो रुक जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। जब यहाँ पे तो ठीक है लेकिन यहाँ पे जब जाते हैं तो ये डीएक्टिव हो जाती है। इसको समझ नहीं आती कि इसको मसला है तो है क्या। शायद इस पे लॉक लगाना है तो यही है। ये बंद हो गया, ये लॉक लग गया। अब मेरा ख्याल है शायद ये चलती रहेगी। जी बेटा, कोई बताइए, कोई आपकी जो जो मैं बात कर रहा हूँ वो समझ में आई है कि नहीं आई।
एवरीथिंग ओके, गुड। अब मैं फिर एक दफा छोटा सा बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अप्रोच, और ये समझनी बहुत जरूरी है। टोटल एसेट के दो पोर्शन मैंने बना दिए। एक परमानेंट पोर्शन। परमानेंट पोर्शन में क्या है, सारे के सारे फिक्स एसेट हैं, प्लस जो करंट एसेट का परमानेंट पोर्शन है वो भी इसमें शामिल। तो एक पार्ट बन गया परमानेंट टोटल एसेट। परमानेंट टोटल एसेट का मतलब है ये पूरा साल चाहिए, खास सीजन हो खास सीजन ना हो, इसका इससे ताल्लुक नहीं। अच्छा, कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो सीजनल, हमारे करंट एसेट का ऊपर वाला पोर्शन जो सिर्फ सीजन पे चाहिए, वो टेम्परेरी है। जब सीजन होगा तो चाहिए, जब सीजन नहीं होगा तो नहीं चाहिए। ये बात मेरा ख्याल अगर क्लियर हो गई है तो आगे मुझे बहुत आसानी होगी कि मैं बता पाऊं कि क्या है। सर, वाई इज इट टेम्पोरेरी इन द लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म में टेम्पोरेरी नहीं है। टेम्पोरेरी एसेट्स दो तरह के हैं, आपके सामने जो पिक्चर चल रही है उसमें आप देखें। हमने अब ये कहा है कि जो टोटल एसेट्स हैं, ये टोटल एसेट हैं, वो दो तरह से हमने ये अलग कैटेगराइजेशन है, ये पहले वाली कैटेगराइजेशन को हमने खत्म कर दिया। अब हमने कहा है कि कुछ एसेट्स हमें पूरा साल चाहिए, वो परमानेंट है, और कुछ एसेट हमें सिर्फ सीजन पे चाहिए, वो टेम्पोरेरी। जो सीजन पे चाहिए वो टेम्पोरेरी है, तो वो करंट एसेट का कुछ पोर्शन है। जो सारा साल चाहिए वो फिक्स एसेट प्लस परमानेंट पोर्शन ऑफ करंट एसेट। ये बात अगर समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आया था अमना बुशरा से, बेटा समझ आ गई है तो ठीक है। इज इट ओके सर, व्हाई इज इट टेम्पोरेरी? ये आमना बुशरा का क्वेश्चन था। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने ये नई कैटेगरी बनाई है। एक वो एसेट जो पूरा साल चाहिए, एक वो एसेट जो सिर्फ सीजन पे चाहिए। जो सिर्फ सीजन पे चाहिए उसे हम टेम्पोरेरी कहते हैं, जो पूरा साल चाहिए उसे हम परमानेंट कहते हैं। जी, मेरी बात अगर क्लियर होगी है तो मैं वेट करूंगा कुछ देर, ताकि ये बात क्लियर हो जाए तो फिर बड़ा आसान होगा आगे जाना। काफी स्टूडेंट कह रहे हैं कि समझ आ गई है बात की, लेकिन आई वांट के जिसने ये क्वेश्चन पूछा था उसका रिप्लाई आ जाए। ओके की रिपोर्ट आपकी तरफ से है ना, सबकी तरफ से तो आपको नहीं पता। हाँ बिल्कुल, आप कह दिया उन्होंने, सर स्क्रीन इज नॉट मूविंग। स्क्रीन नहीं मूव कर रही, इसमें तो मूव कर रही है, इसमें इसमें फिर मसला आ जाता है, पता नहीं क्यों हर दफा मुझे उसको एक्टिव करना पड़ता है। चले, आपको लोगों को भी तो एक्टिव करना पड़ता है, अगर उसको भी है तो उसको भी कर लिया करेंगे। जी बताइए बेटा। हाँ, टेम्पोरेरी सीजन से लिंक्ड है, बिल्कुल ठीक कहा समर अब्बास ने। हमारे बड़े ही अच्छे स्टूडेंट हैं ये, माशाल्लाह बड़े एक्टिव स्टूडेंट हैं। इन्होंने कहा कि यानी कि पूरे एसेट्स दो तरह के हो गए। एक सीजन के लिए, जो सीजन के लिए हैं वो टेम्पोरेरी हैं, और बाकी सारे के सारे जो है वो परमानेंट है। चले, अब क्लियर हो गया। अब हम उधर से सिग्नल आ गया है, मैसेज आ गया है कि जी हमें बिल्कुल समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं। जी, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं एक दफा फिर बता देता हूँ, टोटल एसेट के दो पोर्शन बन गए। एक पूरा साल चाहिए, वो पूरा साल चाहिए वो परमानेंट पोर्शन है। जो सिर्फ सीजन पे चाहिए, अब वो टेम्पोरेरी पोर्शन है। अब हमने करंट और फिक्स का वो वाला काम खत्म कर दिया। हम सिर्फ ये बताएंगे कि परमानेंटली एसेट चाहिए या हमें सिर्फ सीजन वाले चाहिए। तो ये दो तरह से हमने इसे कैटेगराइज कर दिया है। देखते हैं। अब मैं आगे बढ़ने लगा हूं। बेटा बड़े गौर से आपने, सर प्लीज कट योर वॉइस।
अच्छा जी, इंडोर्समेंट की है कि जी वो फलां कैपेबल है, इसका मतलब है आप नहीं है। वो तो कैपेबल है, आप भी मेहनत करें ना थोड़ी सी, आप भी करें, कोशिश करें, लोगों को सोचने की बजाय खुद सोचें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब गौर से देख लिया बेटा, अब गौर से मेरी बात आपने सुननी है, क्योंकि तवज्जो आपकी होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने लगा हूँ इसकी तरफ। अब आप देखें, एसेट के दो पोर्शन बन गए, एक टेम्पोरेरी सीजनल, एक परमानेंट लॉन्ग टर्म, यानी जो पूरा साल चाहिए। ये सीजन पे चाहिए और ये पूरा साल चाहिए। और फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है एक साल, लॉन्ग टर्म का मतलब है कई साल, एक साल से ज्यादा। अच्छा, जो एसेट टेम्पोरेरी यानी सीजनल चाहिए उसको शॉर्ट टर्म से ही फाइनेंस करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, जो सीजनल वाले हैं वो सिर्फ सीजनल के लिए लेंगे, यानी 3 माह के लिए जो लोन चाहिए था वो सिर्फ 3 माह का ही लिया, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क है ये मॉडरेट, ये बात। और जो लॉन्ग टर्म पूरा साल चाहिए था तो वो साल भर के लिए ही आपने लिया, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट है। लॉन्ग टर्म में 4 साल के, 5 साल के, जितने साल के भी हैं, साल से ज्यादा के लिए हैं, तो ये साल से ज्यादा के लिए फाइनेंस करें। अब जरा गौर कीजिए, मैं बड़ी डिटेल बताने लगा हूं। टोटल एसेट के दो पोर्शन हैं। जो टेम्पोरेरी यानी सीजनल पोर्शन है वो जितनी देर के लिए चाहिए, कम देर के लिए चूंकि चाहिए तो वो कम देर से ही फाइनेंस करें। जो लॉन्ग टर्म चाहिए वो फिर लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस कर। दूसरे अल्फाज में मैं कहता हूं, अगर कैश आपको 3 माह के लिए चाहिए तो फिर 3 माह का ही लें, 6 माह का ना लें, 5 माह का ना लें। और अगर एक लॉन्ग टर्म एसेट 4 साल की उसकी लाइफ है तो उसके बदले जो लोन लेना है वो भी 4 साल का ही लें। एसेट की जितनी लाइफ है उसी को अगर आप उसकी फाइनेंसिंग से मैच कर लेंगे तो आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। तो ऐसी सूरत में आपका जो रिस्क एवरेज है और प्रॉफिटेबिलिटी भी एवरेज है। अगर आप शॉर्ट टर्म एसेट्स को, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, पैसे चाहिए थे 3 माह के लिए, आपने ले लिए 6 माह के लिए, तो इसका मतलब है, या आपने ले लिए साल के लिए, तो लॉन्ग टर्म से आपने फाइनेंस कर दिया, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगा और रिस्क भी कम हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म एसेट्स, अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए तो उसको लॉन्ग टर्म से ही फाइनेंस करें तो मॉडरेट। अगर उसे शॉर्ट टर्म, मतलब पैसा चाहिए था आपको 9 माह के लिए, लेट्स सपोज, या आपको चाहिए था साल के लिए या 2 साल के लिए, आपने 6 माह के लिए ले लिया कि हर 6 6 माह बाद दोबारा लोन ले लूंगा, मतलब मैं 4 दफा लोन लूंगा 6 6 माह का, तो ये आपका नुकसान होगा। इसमें आपका रिस्क भी हाई होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन सस्ता मिलता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई होगी। तो ये आपको मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच है, हैजिंग या मैच्योरिटी मैचिंग। मैच्योरिटी मैचिंग का असल मतलब क्या है? मैच्योरिटी मैचिंग का असल मतलब है जो एसेट जितनी देर इस्तेमाल करना है उतनी देर के अगेंस्ट ही फाइनेंस कर ले। अगर आपको कैश आपने इस्तेमाल करना है शुगर मिल में, शुगर मिल का सीजन पीरियड है 3 माह का, 3 माह के लिए आप किसी बैंक से जाके उधार ले आए और आपने सीजन गुजारा, और सीजन गुजरा तो आपने वापस कर दिया, तो ये मॉडरेट रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी है। ना तो रिस्क ज्यादा है ना प्रॉफिट ज्यादा है। अब अगर आपने एक गाड़ी खरीदी है और वो गाड़ी की उम्र जो है वो 5 साल है, तो उसके बदले भी जो लोन लेंगे वो 5 साल का लोन लेंगे। तो इसको हम कहते हैं हैजिंग मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच। जितने एसेट की उम्र है लोन भी उतने पीरियड का ही फाइनेंस करें ताकि आपकी मैच्योरिटी मैच कर जाए। आप अगर फर्ज करते हैं कि आपने एक गाड़ी लेनी है और गाड़ी की उम्र 5 साल आपने रखी है, तो 5 साल के लिए यूज करना, उसके बदले आपने लोन 1 साल का ले लिया, तो ऐसे में क्या होगा कि एक एक साल के 5 टुकड़े आपने कर दिए कि जी मैं हर साल लेके तो किस्त देता रहूंगा,
ऐसा करने से रिस्क हाई हो जाएगा, या पहली दफा आपने लोन लिया, अगली दफा शायद आपको लोन मिले ना, तो फिर कहाँ से आप किस्त देंगे। तो हैजिंग मैच्योरिटी मैचिंग कह रहा है कि जितने अरसे के लिए आपको एसेट यूज करना है उतने अरसे का ही लोन लें। अगर सीजन के लिए यूज करना है तो सीजनल लोन लें, और अगर लंबे अरसे के लिए यूज करना है तो फिर लंबे अरसे का यानी लॉन्ग टर्म आप लें। देखता हूं मैं कि क्या रिस्पांस है स्टूडेंट्स का। आप एक दूसरे पे कमेंट ना किया करें, आप सिर्फ अपनी बात किया करें और क्वेश्चन से पूछें। जी बेटा, लायर जो है वो एल, एक दूसरा लायर भी होता है, वो है या ला वाला लायर है या दूसरा लायर है, तो ये जरा गौर करना पड़ेगा। जी, ये मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने अरसे के लिए कोई एसेट आपको चाहिए उतने अरसे का ही आप लोन लें। जितने अरसे के लिए कोई एसेट चाहिए उतने अरसे का ही आप लोन लें। एसेट जितने अरसे का चाहिए उतने अरसे से ही फाइनेंस करें। ये है हैजिंग और मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी वो इस तरह से होगा। अगर आपको कम अरसे के लिए चाहिए था, आपने लंबे अरसे के लिए लिया, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाए। यानी पैसे आपको चाहिए थे सिर्फ सीजन के लिए, 3 माह के लिए, शुगर मिल को, शुगर मिल ने 6 माह का उधार ले लिया, तो बाकी 3 माह उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो उससे उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाँ, उसका रिस्क भी कम हो जाएगा कि पैसे उसके पास पड़े हुए हैं। अब अगर आपने जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, एक गाड़ी है, गाड़ी को के लिए आपने लोन लिया है, अब गाड़ी की उम्र जो है ना वो 5 साल है, आपने साल का लोन ले लिया, तो ऐसी सूरत में आपका हाई रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी होगा, हो सकता है दोबारा आपको लोन ना मिले, तो ये प्रॉब्लम होगा आपके लिए। तो इसे कहते हैं हैजिंग और मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच। The loan should be as far as long as you want or finance it, नहीं यूज इट। एक एसेट्स है, उसकी कोई उम्र है, उसकी उम्र जितनी है, जितनी देर के लिए आपने उसे यूज करना है, उसके अंगेंस्ट जो लोन लिया है वो भी उतनी देर का ही ले। एक एसेट है जिसकी जितनी आपने देर के लिए इस्तेमाल करना है उसके अंगेंस्ट फाइनेंसिंग उतनी देर की करें। इसे कहते हैं मैच्योरिटी मैचिंग, हैजिंग और मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच। जी बेटा, मेरा ख्याल अब बात क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बल्कि थोड़ी स्लाइडें 2-3 हमने छोड़ दी थी, वो मैंने जानबूझ के छोड़ी थी समझाने के लिए। अब आप थोड़ा सा इस पॉलिसी को देख लें। अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले आए तो ये भी हमने परमानेंट कर दिया, तो ये आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच होगी। यानी आपने आपने एसेट यूज करना था 3 माह, आपने 4 माह का लोन ले लिया कि चले एक आधा माह ऊपर भी हो गया तो कोई बात नहीं, तो वो ये सूरत हाल बनेगी। मसला शुगर मिल 3 माह उसका सीजन होता है, तो उसने 3 की बजाय 4 माह का लोन ले लिया, तो ऐसी सूरत में उसकी ये कंजर्वेटिव पॉलिसी होगी कि उसने कहा कि पैसे कहीं जैम भी हो गए तो बैंक मैं डिफॉल्ट नहीं होगा तो मैं दे दूंगा, तो कोई इश्यू नहीं है, तो लिहाजा इस तरह की पॉलिसी होगी तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच होगी। अगर इस तरह की होगी कि उसका सीजन तो है, वो है 3 माह का, उसने लोन 2 माह का ले लिया, उसने कहा जी फिर ले लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर ले लेंगे, तो ऐसी सूरत अग्रेसिव अप्रोच है, ये अग्रेसिव पॉलिसी, ये अग्रेसिव पॉलिसी है। अब अगर आप अग्रेसिव पॉलिसी की तरफ जाएंगे तो ये है, और अगर आप कंजर्वेटिव पॉलिसी की तरफ जाएंगे तो ये है। यहां से ये बात समझ आ रही है, अग्रेसिव पॉलिसी, ये कंजर्वेटिव पॉलिसी, और ये है अग्रेसिव पॉलिसी। ये इसमें आपने, आपका सीजन है शुगर मिल का 3 माह का, आपने लोन ले लिया
4 माह कि अगर 1 महीना पैसे कहीं रुक भी गए तो 1 महीने का मार्जिन रख लिया। और इसमें आपने उलट कर दिया, आपका सीज़न है 3 माह का, आपने लोन ले लिया 2 माह का, फिर दोबारा ले लूँगा। ये अग्रेसिव अप्रोच है और ऐसी अप्रोच से नुकसान भी हो सकता है दोनों में, क्योंकि अब ये 2 माह का लोन है तो ज़्यादा सस्ता मिलेगा। लोन जितना मैच्योरिटी बढ़ती है उतना वो महँगा होता है। मसलन 6 माह का जो लोन है, 1 साल के लोन से उसका इंटरेस्ट कम होगा। 2 साल के लोन जो है उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा होगा। 3 साल का लोन का इंटरेस्ट और ज़्यादा होगा। 4 साल का लोन है तो इंटरेस्ट और ज़्यादा होगा। 5 साल का लोन इंटरेस्ट और ज़्यादा होगा। जैसे-जैसे मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। क्यों? उसमें रिस्क बढ़ता है, बैंक ज़्यादा पैसों पे देता है। तो इस वजह से वो महँगा मिलता है। मसलन अगर आप 10 साल का लोन लेते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए 12% पर, लेकिन यही लोन अगर आप 20 साल का लेते हैं तो वो आपको मिलेगा 18% पर। तो वो आपका रेट बढ़ जाएगा। मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वो उससे बढ़ जाएगा। देखते हैं कि स्टूडेंट्स को ये बात कम्युनिकेट हो गई है। एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है, इफ देयर इज़ स्मॉलर लॉस during the season and he is unable to repay the loan, will the bank give him another loan if the same happen? वो ये कह रहे हैं, समर अब्बास, हमारे स्टूडेंट ये फरमा रहे हैं कि अगर कोई किसी ने लोन लिया है, वो पे नहीं कर सका और बैंक से उसने कहा कि मुझे और लोन दे दें, तो क्या बैंक उसे लोन दे देगा? डिपेंड करता है कि बंदा किस तरह का है। अगर तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है तो बैंक नहीं देगा। अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और ये कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम आ गया है तो उसने जाके बैंक को बताया है कि जी इस वजह से इस दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो बैंक अगर यकीन कर लेगा तो उसे लोन दे भी देगा। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी बैंक के साथ और उसका रिलेशनशिप बैंक के साथ कैसा है। अगर उसका रिलेशनशिप बैंक के साथ अच्छा है और वो क्रेडिबल बंदा है और वो पुराना डीलर है, तो ऐसी सूरत में नॉर्मली उसको फेवर मिलती है। और अगर वो क्रेडिबल नहीं है तो ऐसी सूरत में फिर उसको फेवर नहीं दी जाती। देखते हैं कोई और क्वेश्चन। कंजर्वेटिव इज बेटर, बेटर की बात नहीं है कि कंजर्वेटिव बेटर है। कंजर्वेटिव बेटर फिर इसलिए है कि चले आप रिस्क नहीं ले रहे तो फिर आपको उसका जो प्रॉफिट है वो भी नहीं मिलेगा। इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, पता नहीं फिल्टर वगैरह कोई ऐसा कि वो डीएक्टिव व्हेन नॉट शोइंग, ये तो नहीं लगा हुआ। ये करके देख लें, शायद इससे सही हो जाए। ठीक है। अगर डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड, इसमें प्रॉब्लम।
मुश्किल है। जी, एनी क्वेश्चन? कोई नहीं आया, आगे हम देखते हैं। ये डीएक्टिव हो जाती है क्या? अच्छा जी, अब है कॉम्बिनेशन लायबिलिटी स्ट्रक्चर एंड करंट एसेट डिसीजन। ये मैंने शुरू में भी बात बताई थी कि हमने ये देखना है कि लेवल ऑफ करंट एसेट एंड द मेथड ऑफ फाइनेंसिंग दोज एसेट्स आर इंटरडिपेंडेंट। यानी पहले आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, पहले आपकी पोजीशन कैसी है, तो आपकी जो पोजीशन है और करंट एसेट का लेवल है ये डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर आपका वीक है, बहुत ज्यादा लोन आपने लिया हुआ है, तो करंट एसेट से मजीद लोन लेने से गड़बड़ हो सकती है, तो ऐसी सूरत में आप ज्यादा लोन नहीं लेते। लेकिन अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन पोर्शन कम है तो फिर आप अग्रेसिव पॉलिसी पे जा सकते हैं, आप जो है वो ले सकते हैं। एक कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स अलाउज अ मोर अग्रेसिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट। अगर कंजर्वेटिव पॉलिसी है आपकी, यानी पहले जो करंट एसेट है वहां पे आप कंजर्वेटिव है, हाई लेवल ऑफ करंट एसेट अलाउज मोर अग्रेसिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, यानी आपकी जो पहले कंजर्वेटिव पॉलिसी है, वो कंजर्वेटिव पॉलिसी का मतलब है आपका लोन पोर्शन कम है, तो वो फिर आपको अलाउ करता है कि आप करंट एसेट में ज्यादा लोन ले लें अगर आपका लोन पोर्शन पहले कम है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर एक कंजर्वेटिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग ऑल इक्विटीज अलाउ अग्रेसिव पॉलिसी। हाँ, अगर आपकी ऐसी फर्म है, मैं मिसाल देता हूँ। अब इस मिसाल को समझ लीजिए, जरा गौर कीजिएगा। 3 फर्म है, ए फर्म जो है उसकी जो डेट इक्विटी रेशियो है उसका डेट 20% है। ना ए फर्म का जो डेट है वो 60% है, बी फर्म का डेट जो है वो 30% है और सी फर्म में डेट है ही। 3 फर्म है जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर, ये बैलेंस शीट की दूसरी साइड की मैं बात कर रहा हूँ। बैलेंस शीट की जो दूसरी साइड है, जो लॉन्ग टर्म, जो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ। अब पहला जो है, पहली फर्म ए, उसकी 60% लायबिलिटी है, 40% इक्विटी। दूसरे की 30% लायबिलिटी है, 70% इक्विटी है, यानी कि पहले से दूसरे की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। दूसरे की तीसरे की लायबिलिटी है ही नहीं, सारा का सारा इक्विटी का है, उसकी और ज्यादा फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। ये बात आपको समझ में आ गई। ए की वीक है, बी की उससे बेहतर है और सी की सबसे बेहतर है। ये एक सिनेरियो में आपके सामने रखा है, तो इस सिनेरियो को समझ में आया है, यस आप कहेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और बड़ी आसानी से हम समझ जाएंगे। बेटा 3 सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो जिसका डेट जो है वो 60% है, उसकी पोजीशन वीक है, उसके मुकाबले में जिसका डेट 30% है।
और जिसका डेट 30% है वो उसके मुकाबले में वीक है जिसका डेट है ही नहीं। यानी ऑल इक्विटी फाइनेंस, अगर आप डेट का पोर्शन यूज नहीं कर रहे, सिर्फ इक्विटी से ही आपने सारा बिजनेस किया हुआ है, इसे इक्विटी फाइनेंसिंग कारपोरेशन कहते हैं, ऑल इक्विटी फाइनेंस कारपोरेशन कहते हैं या बिजनेस कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई है तो मुझे बताइए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। आई एम वेटिंग इफ ये बात आपको क्लियर हो गई है। सी कंपनी इज बेटर बिकॉज सी कंपनी हैज नो डेट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान से निकाल दें कि अ, अभी तक ये हमारा क्वेश्चन नहीं है सी कंपनी बेटर है या नहीं बेटर है, ये हम डिसाइड नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि सी की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत है। कंपनी अर्न क्या कर रही है और कौन सी कंपनी होनी चाहिए, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ए में 60% डेट है तो ए की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, बी की उससे बेहतर है और सी की उससे बेहतर है, यानी सबसे बेहतर सी की फाइनेंशियल पोजीशन है। ये बात अगर समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे बताऊंगा और फिर मैं ये भी बताऊंगा बाद में कि कौन सी कंपनी बेहतर है, कौन सी कंपनी बेहतर है। जी, आपके क्वेश्चन कम हो गए हैं, पता नहीं भूख लग गई है क्या हो गया है। सी कंपनी इज बेटर देन बिकॉज सी कंपनी हैज नो डेट। सी कंपनी बेटर है, वो कह रहा है कि सी कंपनी में डेट नहीं है तो इसलिए बेटर। अच्छा, चलें, ये बात अगर समझ में आ गई, मैं पहले ये बताऊं फिर हम इस पे बहस करेंगे कि कौन सी कंपनी होनी चाहिए। अच्छा, जो कंपनी जो सी है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, वो कंपनी, जो कंपनी सी है, अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन वाली कंपनी,
वो आपको अलाउ करती है, वो सिचुएशन आपको अलाउ करती है कि आप अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल रख सकते हैं, क्योंकि आपने पहले लोन किसी का नहीं देना। जो ए कंपनी है, उसकी पहले की जो हालत है वो आपको अलाउ नहीं करती कि आप अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पे जाएं, क्योंकि आपने तो पहले ही ज़ाहिर है आपका स्ट्रक्चर इस तरह का है। जबकि बी वाली मॉडरेट पोजीशन में है। अब आप समझ गए जो असल में मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो पहले वीक है, तो ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप अग्रेसिव पॉलिसी लें। ये इंटरडिपेंडेंट है, यानी कंपनी का स्ट्रक्चर और कंपनी के करंट एसेट्स की या कंपनी की फाइनेंसिंग पोजीशन जो है ये इंटरडिपेंडेंट है। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो अगर सारा इक्विटी फाइनेंस है, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप खुल के खेलें, क्योंकि आपने पहले लोन किसी का नहीं देना, तो अब आप अग्रेसिव पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले 60% लोन देना है, तो ये आपको रोकता है कि आप अग्रेसिव पॉलिसी लें। ये बात अगर क्लियर हो गई है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तकरीबन एवरेज 19-20 लोग आज हैं, बाकी लोग नहीं है, एब्सेंट हैं, तो उनकी एब्सेंट लग जाएगी। तो जो लोग हैं सिर्फ उनकी प्रेजेंट लगेगी जो यहाँ पे हैं। और अभी थोड़ी देर में ही हम यहाँ अटेंडेंस अपलोड कर देंगे और अटेंडेंस लगा देंगे। इन विच केस विल द रिस्क, अभी ये हम सवाल कर ही नहीं रहे जो आप सवाल पूछ रही हैं। हम सिर्फ ये सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं कि जब कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जो कंपनी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वो कंपनी को अग्रेसिवली डील करना, यानी कि अगर जान वाला बंदा है, अब मैं सादा एग्जांपल दूं, जान वाला बंदा है, इसका ये मतलब है कि वो किसी से कोई हाथापाई कर भी सकता है। अगर वो पहले ही कमजोर है, तो वो जाहिर है वो बड़ा केयरफुल रहेगा। इसी तरह से अगर आपने पहले ही लोन देना है, तो फर्दर अग्रेसिव पॉलिसी आप नहीं ले सकते। अगर आपने पहले लोन नहीं देना, तो ये सिचुएशन आपको अलाउ करती है कि आप रिस्क ले सकते हैं। तो ये बात अगर समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन आपको फर्दर पॉलिसी डेवलप करने का बताती है कि फर्दर आपने पॉलिसी डेवलप किस तरह से करनी है। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन आपकी वीक है, तो वो आपको अलाउ नहीं करती कि आप फर्दर कोई अग्रेसिव एक्शन लें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ बार बार। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, आमना बेटा आप बताएं, आपको बात क्लियर हुई है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूँ कि जो आपकी, अगर आपने ऑलरेडी रिस्क लिया हुआ है, ऑलरेडी उधार लिया हुआ है, तो आप फर्दर उधार लेना आपके लिए खतरनाक है। अगर आपने ऑलरेडी कोई उधार नहीं लिया हुआ, तो आप फिर उधार ले सकते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि जो आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन है, वो आपको अलाउ करती है, वो इंटरडिपेंडेंट है आपकी फर्दर पॉलिसी से। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन मजबूत है, तो फर्दर अग्रेसिव पॉलिसी ले सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन आपकी वीक है, तो फर्दर आप जो है अग्रेसिव पॉलिसी नहीं ले सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी लोन लिया है। ऑल पॉइंट क्लियर सर। अगर वर्किंग पोजीशन नॉर्मल हो तो अग्रेसिव, वर्किंग पोजीशन नॉर्मल क्या मतलब है? मैं बात समझा नहीं हूँ आपकी। हमारे पास वर्किंग पोजीशन नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है यानी 30%। इंटरमीडिएट, अगर इंटरमीडिएट है तो यकीनी आप फुली अग्रेसिव नहीं जा सकते, आपको उसी हिसाब से जाना है। बताना सिर्फ आपको ये था कि
जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो आपको डायरेक्ट करती है कि आगे आपने क्या करना है। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन वीक है तो आगे आप कोई अग्रेसिव एक्शन नहीं ले सकते, अगर स्ट्रांग है तो फिर आप ले सकते हैं, ये बताना मकसूद है। जी, मैं वेट कर रहा हूँ कोई क्वेश्चन आ जाए, फिर मैं इस पे डिटेल से बात करूंगा कि क्या करना चाहिए। Source is selected. जी, अब जो आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं मेरा ख्याल है ये बात आप समझ गए हैं, तो अब हम मेन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि मेन क्वेश्चन हमारा क्या था कि क्या ऑल इक्विटी फाइनेंस कारपोरेशन होनी चाहिए या डेट से ही चलाना चाहिए। क्या ऑल इक्विटी फाइनेंस कारपोरेशन यानी ऐसी कारपोरेशन, ऐसा बिजनेस, ऐसी फर्म जिसमें कोई जिसने कोई फाइनेंसिंग नहीं की, जिसने कोई किसी से पैसा नहीं लिया, लायबिलिटी उसकी नहीं है, क्या ये अच्छा है या बुरा है? तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये बुरा आइडिया है। अगर आपके पास लेट सपोज आपके पास आपके पास मैं कहता हूं कि 10 बिलियन रुपीज हैं और 10 बिलियन रुपीज की एक फर्म आपने बना दी। अगर एक ही फर्म बना दी तो ज्यादा अच्छा है कि आप एक की बजाय दो फर्म बना दें। आपने 10 बिलियन की दो फर्म बना दी, उसमें से 5-5 बिलियन का लोन भी डाल दिया, तो ऐसी सूरत में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, डिवर्सिफिकेशन बढ़ जाएगी और बहुत से फवायद आपको होंगे। क्योंकि जो इक्विटी है ना, इसकी कास्ट हमेशा कास्ट ऑफ डेट से ज्यादा होती है, तो लिहाजा जब आप डेट का इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर रह जाएंगे एज कंपेयर टू उसके कि आप सारे का सारा बिजनेस जो है वो इक्विटी पे। लिहाजा ये मिथ कि इक्विटी 100% होनी चाहिए टोटल गलत है।
इक्विटी 100% नहीं होनी चाहिए। इक्विटी का 100% होने से नुकसान क्या होगा? जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो डेट है उसको, जो इनकम है उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। आप टैक्स से रिबेट लेते हैं और उसे एडजस्टमेंट भी करते हैं ताकि टैक्स स्लैब को एडजस्ट करके भी आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। लिहाजा अगर आप ये सोच रहे हैं कि 100% इक्विटी से बिजनेस अच्छा होता है, इसका रिस्क तो कम होता है लेकिन इसका रिटर्न भी कम होता है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि रिस्क अगर कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। हमने रिस्क और रिटर्न का वो पीछे जो रिलेशन है वो पढ़ा। जब डेट होगा तो तब आप इनकम में से इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करेंगे, नेट इनकम कम आएगी, नेट इनकम टैक्स भी आपको कम लगेगा। लेकिन अगर इक्विटी फाइनेंस है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो है नहीं, टोटल इनकम के ऊपर ही आपको टैक्स लगेगा और आप ज्यादा टैक्स देंगे और आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। लिहाजा बिजनेस 100% इक्विटी फाइनेंस नहीं होना चाहिए, इसके मुकाबले में उसमें कुछ डेट शामिल होना चाहिए। अब सवाल यह है कि डेट कितना शामिल होना चाहिए। डेट बहुत ज्यादा होगा तो डिफॉल्ट का रिस्क आ जाएगा और डेट बहुत कम होगा तो ये महंगा सौदा होगा। इसके दरमियान आपने एक लेवल तय करना है कि कितने परसेंट आपका डेट हो तो ये खूबसूरत चीज बनेगी। मैं कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप हाइब्रिड हैं। एक मैं देसी सी मिसाल, एक आम सी मिसाल देता हूँ। आप बिल्कुल एक पकौड़ा बना रहे हैं, इस पकौड़े में मिर्च डालते ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या टेस्ट अच्छा होगा? या एक खूबसूरत हाइब्रिड सिस्टम बनाएंगे, इतनी मिर्च होगी, इतना नमक होगा, इतना बेसन होगा, इतने प्याज होंगे, इतनी ये चीज होगी, तो ये पकौड़े टेस्टी बन जाएंगे। अगर आप ये चाहें कि उसमें एक ही चीज डाल दें या उसका निज़ाम जो है वो उसका कॉम्बिनेशन जो है वो खराब कर दें तो ऐसी सूरत में उसका टेस्ट नहीं आएगा। सिमिलरली अगर डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन खूबसूरत बनाएंगे, और खूबसूरत से मुराद ये है कि ऐसा बनाएंगे जो इंडस्ट्री को देखकर और जो सिस्टम को देखकर और जो टैक्स स्लैब को देखकर, तो ये आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा। जब टैक्स आप ज्यादा देंगे तो ऐसी सूरत में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो लिहाजा ये बात तो बहुत क्लियर है कि 100% इक्विटी फाइनेंस का फायदा नहीं है, लेकिन ये बात डिबेटेबल है कि वहां डेट कितने परसेंट होना चाहिए। इट डिपेंड्स कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। अगर आप बैंक हैं, अगर आप बैंक का काम करते हैं तो सारे बैंक का अगर आप गौर करें तो 10 से 15% इक्विटी होती है, बाकी सारा लोन लेके वो आगे चलाते हैं। इसी तरह से अगर शुगर इंडस्ट्री है तो उसका स्ट्रक्चर और होगा, कॉटन इंडस्ट्री है उसका स्ट्रक्चर और होगा, आपका कोई और इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है उसका स्ट्रक्चर और होगा, फार्मास्यूटिकल है उसका स्ट्रक्चर और होगा। तो डिपेंड करता है कि फर्म किस तरह की है, इंडस्ट्री कौन सी है, और फिर आप सेलेक्ट करते हैं कि आपने इक्विटी का कौन सा कितने परसेंट रखना है। आमतौर पर इंडस्ट्री में पैटर्न सिमिलर होता है, ये हमें गौर करना है। अगर केमिकल इंडस्ट्री है उस सारी इंडस्ट्री का कैपिटल स्ट्रक्चर को 19-20 के फर्क से एक जैसा होगा। सीमेंट इंडस्ट्री है तो सारे का कैपिटल स्ट्रक्चर 19-20 के फर्क से तकरीबन एक जैसा होगा। होना चाहिए, अगर एक जैसा नहीं है तो वो एक तरह से मसला हो जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम इंडस्ट्री सेलेक्ट करें तो उससे तालमेल करके ही हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाना है। हमारी फर्म में कितना रिस्क होगा, क्योंकि जो आपके इन्वेस्टर हैं और जो आपके कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, वो इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर एक इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, उसमें ज्यादा इक्विटी है, तो ऐसी सूरत में
लोग उसको प्रेफर करेंगे और उसको प्रेफर नहीं करेंगे जिसने पहले ही से ज्यादा लोन लिया हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, जिस बंदे ने मोहल्ले में ज्यादा लोन लिया हुआ उसको फर्दर कोई लोन नहीं देता। तो ये बात जहन में रख लेना चाहिए कि ऑलरेडी आपका रिस्क क्या है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे और ये मिथ भी आप तोड़ दें कि यदि 100% इक्विटी फाइनेंस पे फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है, और ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है। आप एक की बजाय 2 इंडस्ट्री लगाएं, एक की बजाय 2 फर्म लगाएं, 2 से 3 कर दें, लेकिन उसमें डेट का पोर्शन जरूर शामिल करें। कितना करना है ये डिपेंड करता है कि ये आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। बैंक है तो कोई और पोर्शन होगा, सीमेंट है तो कोई और पोर्शन होगा, शुगर है तो कोई और पोर्शन होगा, केमिकल है तो कोई और पोर्शन होगा, और फार्मास्यूटिकल है तो कोई और पोर्शन होगा। जी, मेरी बात उम्मीद है आप तक पहुंच चुकी होगी। मैं देखता हूं कि आप रिस्पांस में क्या कहते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? अपना अपने नाम से अपना रोल नंबर जो है, आप देखें 23 तादाद हो गई है। चलें, अपना नाम अपने रोल नंबर से अपनी अटेंडेंस लगवाएं, नाम के साथ रोल नंबर लिख के। Why is it necessary to include debt? जी, हमाद ने ये पूछा है कि ये क्यों नेसेसरी है कि डेट को इंक्लूड किया जाए। और भी देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन आएंगे फिर मैं एक ही दफा रिप्लाई कर दूंगा। अभी तक तो वो रोल नंबर आने शुरू हो गए हैं, हमाद का क्वेश्चन उधर का उधर रह गया। स्टूडेंट चाहते हैं जल्दी से मैं लेक्चर खत्म कर दूं ताकि वो भाग जाएं और बकरे लेने के लिए भागें। और कुछ लोग कह रहे थे कि हमने बकरे लेने, और अल्लाह करे सस्ता मिल जाए, बेहतर मिल जाए, अच्छा मिल जाए। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि कौन सा कैसे किस तरह का बकरा मिलेगा। अब ये तो देखें अब, जो बकरा मंडी है उसका क्या ट्रेंड होता है। अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये बकरा मंडी में क्यों कीमतें बढ़ती हैं और क्यों कीमतें कम होती हैं, इस पे भी बात करूंगा, लेकिन शॉर्ट सी बात होगी, लंबी बात नहीं होगी। अभी आप गौर से देख लें, आपका क्वेश्चन अगर कोई आ जाए तो ये कीमत बढ़ती क्यों है, कम क्यों होती है बकरा मंडी में। बकरों की कीमत, एक बकरा 50 का मिल रहा है, फिर वो 80 का भी हो जाता है और बाद दफा 40 का भी हो जाता है, इसकी क्या वजह है? ये सिंपल बेटा डिमांड और सप्लाई की बात है। जब गाहक ज्यादा होंगे, बकरे कम होंगे, तो रेट अप हो जाएगा। और अगर खरीदने वाले कम हैं और बेचने वाले ज्यादा हैं, तो बेचने वाले उसकी प्राइस कम कर देते हैं। तो उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर जाए। बहुत मेहनत कीजिए, बहुत हिम्मत से काम कीजिए। यकीनन ईद भी एक कुर्बानी है और मेहनत करना भी एक कुर्बानी है। आई होप कि आप इस कुर्बानी से भी ब्रेक नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपना मुकाम पैदा करें। और यकीन कीजिए, आज मैं आपको आखिरी बात इस लेक्चर के खत्म करने से पहले बताना चाह रहा हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा। मैं एक दफा फिर कहता हूं, अगर आप मेहनत से काम करेंगे, चीजें सीखेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना चाहेंगे, तो कोई दुनिया की ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आप यकीनी तौर पर आगे बढ़ जाएंगे। मुश्किलात आएंगी, वो आपको टेस्ट करेंगी, आप कायम रहेंगे, आप उन मुश्किलात का मुकाबला करेंगे
और बिल आखिर आप जीत जाएंगे और बिल आखिर अल्लाह का करम आप पे होगा और आप बहुत सारे आगे बढ़ जाएंगे। लिहाजा हमेशा मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं करें और ईमानदारी से आगे बढ़ने की और चीजें सीखने की कोशिश करें। एमबीए समझना है, एमबीए सिर्फ पास नहीं करना, कुछ इल्म हासिल करना है और इल्म हासिल करके ही आप जो है अब वो बड़े आदमी बन सकते हैं। मैं देखता हूँ लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं और अगर ये क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से फिर आपको मजीद नहीं रोका जाएगा क्योंकि आप पहले ही बड़े तंग हैं, मुझे पता है। इंडीड इंडीड इंडीड। चलें जी, इंशाल्लाह आपको ढेरों दुआओं के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे, मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया। ईद से एक दिन पहले क्लास पढ़नी, ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी आपने दी है। अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानी को भी कबूल करे और बहुत शुक्रिया। थैंक यू।